ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਸੀਐਸ, ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ, ਸੀਐਚਐਸਐਲ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7.4% ਵੂਮਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੇ। 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਲਡ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਫਿਲੋਸਫੀ ਡੇ 19 ਨਵੰਬਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਸਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਟੀਮ ਹਾਲੋ UN ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। BCCI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। BCCI ਬੋਰਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ announced MPL Sports as the official kit sponsor for Team India। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ official kit sponsor ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? MPL Sports ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। India has been given hosting rights of FIFA Under-17 Women's World Cup 2022। FIFA Under-17 Women's World Cup 2022 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ 2020 FIFA Under-20 Women's World Cup 2022 ਤੇ 2020 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ FIFA ਦਾ Under-20 Women's World Cup 2022 ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? FIFA ਕਰੇਗਾ। ਐਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ 2020 ਆਰ ਕੈਂਸਲਡ ਕਿ 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021 ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 2020 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਸਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੀ ਟੌਪ 500 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 63rd ਨੰਬਰ ਤੇ। ਟੌਪ 500 ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 63rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫੂਗਾਕੂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕਾਸਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1924 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ MS ਬਾਲੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਵਿਲਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। HDFC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ HDFC ਐਗਰੋ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਅਪੋਲੋ ਮੁਨੀਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। HDFC ਐਗਰੋ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ HDFC ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ
ਅਪੋਲੋ ਮੁਨੀਚ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਇਆ HDFC ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ HDFC ਐਗਰੋ ਜਰਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ IRDA ਦੁਆਰਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ IRDAI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। IRDAI 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਾਂਤੀਆ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕਾਂਤੀਆ। ਸਰਬੀਆ, ਸਰਬੀਅਨ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋविक, ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋविक। IRDAI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਨੋਵਾਕ ਦਜੋਕੋविक ਨੇ ATP ਟੂਰ ਨੰਬਰ 1 ਟਰॉफी जीती है और ये ऐसे दूसरे प्लेयर बने ने जिन्होंने यह ट्रॉफी 6 बार जीत ली है। वर्ल्ड के नंबर 1 टैनिस प्लेयर रहे ने नोवाक दजोकोविक, लगातार 6वीं बार दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने 6 बार जीती है आफ्टर पीट सैम्प्रस। इस तो इलावा डोमिनिक थीम की गल करते हैं, ऑस्ट्रिया तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने ATP फाइनल्स 2020 जीते, ATP फाइनल्स 2020 जीते स्पेनिश रफल नडाल नूं हरा के। हैदराबाद, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलोर और फरीदाबाद। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा की किया गया 36 सिटीज़ नूं सिलेक्ट किया गया स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए। इन्हां 36 सिटीज़ दे विचों 4 इंडियन सिटीज़ ने। 4 इंडियन सिटीज़ किहड़ियां ने? हैदराबाद, इंदौर, बेंगलोर और फरीदाबाद। ठीक है जी। इन्हों G20 कंट्रीज़ दे विचों चूज़ किया गया, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम द्वारा G20 कंट्रीज़ दे विचों चूज़ किया गया। ठीक है जी। अच्छा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 1971 दे विच बनाया गया सी, कोलोगनी स्विट्जरलैंड दे विच हैडकुआटर है। 51st मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी 2021 दे विच लूसरने दे विच। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने लैंडमार्क डिफेंस डील साइन की है, रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सिस एग्रीमेंट जापान दे नाल, ताकि चाइना नूं काउंटर किया जा सके साउथ चाइना सी दे विच। साउथ चाइना सी दे विच चाइना नूं काउंटर करने के लिए इस एग्रीमेंट नूं साइन किया गया। फ्रांसिस्को सगास्ती, फ्रांसिस्को सेगास्ती प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए ने पेरू दे। पेरू कैपिटल लीमा है, करंसी सोल चलती है। पेरू कैपिटल लीमा, करंसी सोल चलती है। नेक्स्ट है मियाय सांधू, मियाय सांधू फर्स्ट वूमेन प्रेसिडेंट बने ने यूरोपियन कंट्री मोल्दोवा दे। मोल्दोवा कंट्री है, इस दे फर्स्ट वूमेन प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए ने मियाय सांधू। कैपिटल चिस्माऊ है, करंसी लियू चलती है। वर्ल्ड दा ओनली नॉन वाइट जिराफ कित्थे देखा गया? केनिया दे विच। कित्थे है? केनिया दे विच। केनिया कैपिटल नायरोबी है, करंसी शिलिंग चलती। बोलीविया की गल करते हैं, बोलीविया दे विच चपारे वायरस देखा गया। बोलीविया कंट्री दे विच चपारे वायरस देखा गया है। यह पहली बार 2004 दे विच देखा गया सी, बोलीविया दे विच ही। हुण इस दे केसिस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। बोलीविया कैपिटल सुक्रे है, करंसी बोलीवियानो है। श्रीलंका की गल करते हैं, श्रीलंकन एयरफोर्स ने पहली बार 2 वूमेनस नूं कमीशन किया एज ए फर्स्ट वूमेन पायलट्स। हुण श्रीलंकन एयरफोर्स दे विच फर्स्ट वूमेन पायलट्स बनाए गए। ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा जाएगा किहड़ी कंट्री की एयरफोर्स ने रिसेंटली अपनी कंट्री के फर्स्ट वूमेन पायलट्स चूज किए हैं। ठीक है, किहड़े होणगे? श्रीलंका। नेक्स्ट है ककापो, ककापो पैरेट है जिसनों बर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया न्यूजीलैंड द्वारा। बर्ड ऑफ द ईयर 2020 न्यूजीलैंड द्वारा ककापो पैरेट नूं नामित किया गया। MP की गल करते हैं, MP द्वारा काओ कैबिनेट बनाई गई है। काओ कैबिनेट या गऊ कैबिनेट किस दे लई? काओ की प्रोटैक्शन दे लई। इस दे लई इस कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग है जिहड़ी ऑर्गेनाइज की जाएगी इंडिया की पहली काओ सेंचुरी दे विच कामधेनु गऊ अभयारण्य। कामधेनु गऊ अभयारण्य कित्थे? अगर मालवा दे विच, अगर मालवा, जिसनों 2017 दे विच बनाया गया सी पहली काओ सेंचुरी। नेक्स्ट है 215 मीटर आइडल ऑफ लॉर्ड हनुमान विल बी इंस्टॉल्ड एट परमपुर किशकिंदा टैंपल, हंपी करनाटका दे विच। परमपुर किशकिंदा टैंपल, हंपी करनाटका दे विच भगवान हनुमान दी
215 मीटर मूर्ति बनाई जाएगी। ठीक है जी, ये जो बनाई जाएगी इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपली याद रखना है कि हनुमान जी की जी मूर्ति है सब तो वड्डी मूर्ति कित्थे बनाई जाएगी, परमपुर किशकिंदा टैंपल, कित्थे है ये, हंपी दे विच है, करनाटका दे विच। वेस्ट रेफ्यूजीज एंड वाल्मीकिज कैन नाउ वोट, चेंज करना रह गया, नाउ आएगा थे, कल भी डिस्कस किया सी अपने कि कैन नाउ वोट एंड कंटेस्ट इलैक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर दे विच हुण ये इलैक्शंस दे विच पार्टिसिपेट कर सकणगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है वेरियस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अन्य कमम स्मॉल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट। स्टैटिक दे विच पूछा जाएगा अन्य कमम स्मॉल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट किहड़ी स्टेट दे विच है, या फिर पेरावीकुलम टाइगर रिजर्व किहड़ी स्टेट दे विच है। दोनों कित्थे ने, केरला दे विच। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा मंथली असिस्टेंट डिसाइड की गई है 12,000 रुपये ST कैंडीडेट्स नूं जिहड़े कि UPSC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर्मर एंड फर्स्ट वूमेन गवर्नर ऑफ गोवा, गोवा के पहले वूमेन गवर्नर मृदुला सिन्हा इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। 2014 तो लैके 19 तक ये एज ए गवर्नर रहे सी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की गल करते हैं, मोबाइल यूनिट जीवन धारा शिमला दे विच लॉन्च की गई है। मोबाइल यूनिट जीवन धारा। नैक्सट चलते हैं स्टैटिक पोर्शन के। स्टैटिक पोर्शन के आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे हैं। चंडीगढ़ सिटी लेक और सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छत्तीसगढ़ की गल करते हैं, पामेदा, गोमारदा, सीता नदी और अचना कमर। दिल्ली असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली के विच है। गोवा की गल करते हैं, बोंदला, नेत्रावली, कोटी गांव और मादई। बोंदला काफ़ी बार पूछी जाती है और नेत्रावली भी काफ़ी बार पूछी जाती है, कित्थे है, गोवा दे विच है। ठीक है जी, इस तो इलावा सलीम अली नैशनल पार्क और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा दे विच है। नैशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। गुजरात की गल करते हैं तो गागा, जंबूगोड़ा, बारदा, कच्छ और डेजर्ट। गागा, जंबूगोड़ा, बारदा, कच्छ, डेजर्ट नैशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कित्थे ने, गुजरात दे विच। नैक्सट डिस्कस करते हैं अज के फर्स्ट क्वेश्चन के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्वड एज वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व किया गया। ये याद रखना। ठीक है जी, हर साल इसनों ऑब्जर्व किया जाता है। नैशनल चिल्ड्रन डे आप डिस्कस किया 14 नवंबर को और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को। दोनों इंपोर्टेंट बन गए, याद रखने। 1954 तो इसनों शुरू किया गया सी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसनों ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना। इस तो इलावा एक इंपोर्टेंट चीज़ होर सी, हालांकि हो सकता एग्जाम पूछी जाए, क्योंकि 19 नवंबर को तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किया सी वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे डिस्कस किया 19 नवंबर को। इसे दिन जी इसकी थीम सी वर्ल्ड टॉयलेट डे की थीम सी सस्टेनेबल सैनीटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सस्टेनेबल सैनीटेशन एंड क्लाइमेट चेंज कल भी आप डिस्कस की सी SSNCC सस्टेनेबल सैनीटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसके लिए इंडिया दे विच भी इस दिन को ऑब्जर्व किया गया और इंडिया दे विच टॉयलेट फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई है। इंडिया ने अलग थीम रखी है टॉयलेट फॉर ऑल। हालांकि ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है पर एक बार आपको पता होना चाहिए। मे बी 1% चांस है कि शायद एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया द्वारा इसकी थीम की रखी गई टॉयलेट फॉर ऑल। ठीक है, जिस तरीके हाउसिंग फॉर ऑल रखी गई सी थीम, उस तरीके टॉयलेट फॉर ऑल। ठीक है जी, और इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री भी अनाउंस किया गया सी। तुहानूं याद होएगा काफ़ी टाइम पहले इंडिया को ओपन डिफेक्शन फ्री भी अनाउंस कर दिता गया सी। नेक्स्ट है ऑपरेशन कैलैप्सो। क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनेगा सिमिलर तरीके के नाल डायरैक्ट पूछा जाएगा कि ऑपरेशन कैलैप्सो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेशन कैलैप्सो किस फील्ड के नाल रिलेट करता है। रिसेंटली ऑपरेशन कैलैप्सो ऑर्गेनाइज किया गया कोकेन की समगलिंग को रोकने के लिए। सैकेंड ऑप्शन कोकेन की समगलिंग को रोकने के लिए बेसिकली मुंबई के विच इसनूं किया गया। मुंबई की गल करते हैं डायरैक्टरेट ऑफ रेवेन्यू
डायरैक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटैलीजेंस इन्हां द्वारा इस ऑपरेशन ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਕੇਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੇਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾफ़ी ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਕੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ठीक है जी, स्टैटिक फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखना है कोकेन ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड है ऑपरेशन कैलेप्सो। मुंबई रिलेटेड एक होर न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे आप बाद ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट चलते हैं कि रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ब्राइबरी इंडेक्स। कल आप डिस्कस किया सी कंप्यूटर्स के बारे कि कंप्यूटर्स के परम सिद्धि का रैंक 63rd नंबर पर रहा। सिमिलर तरीके नाल हुण ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क इंडेक्स जारी किया गया कि ब्राइब लैन दे विच इंडिया का किनवा नंबर है 194 कंट्रीज़ दे विचों। ट्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हां द्वारा इसनूं जारी किया जाता है। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया रहा 77th रैंक ते। फोर्थ ऑप्शन इंडिया 77th रैंक ते रहा इस इंडैक्स दे विच। अगर आप गल करते हैं इस इंडैक्स दे विच टॉप किया गया डेनमार्क द्वारा, यानी कि डेनमार्क दे विच जिहड़ी ब्राइब है सब तो घट लीती जाती है। और इस इंडैक्स दे विच लास्ट नंबर ते सीगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है जी, ये याद रखने। इंडिया किनवें नंबर ते है? 77th नंबर ते है। इस तो इलावा आप डिस्कस किया 144th नंबर ते इंडिया किस दे विच रहा सी? हैप्पीनैस इंडैक्स दे विच ग्लोबल हैप्पीनैस रिपोर्ट 2020 दे विच इंडिया 144th नंबर ते। प्रैस फ्रीडम इंडैक्स दे विच इंडिया 142 नंबर ते रहा सी। जेंडर गैप की गल करते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप 2020 दे विच इंडिया 112वें नंबर ते रहा सी। और 76 नंबर ते रहा सी इंडिया सोशल मोबिलिटी इंडैक्स दे विच। सोशल मोबिलिटी इंडैक्स दे विच इंडिया किनवें नंबर ते रहा सी? 76th नंबर ते। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट टू लॉन्च प्रोजेक्ट किराना टू हैल्प वूमेन एंटरप्रेन्योर्स की हैल्प दे लई, हैल्प प्रोवाइड करवाने दे लई या फाइनैंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने दे लई प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया गया। अगर आप गल करिए किरण कह सकते हैं आप इसमें, प्रोजेक्ट किरण लॉन्च किया गया है USAID द्वारा, US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट द्वारा। किस दे नाल मिलके? मास्टर कार्ड दे नाल मिलके इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी। अच्छा, कित्थे लॉन्च किया गया इसनूं? यूपी दे विच लॉन्च किया गया, लखनऊ, वाराणसी और तीसरी सिटी सी कानपुर। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर दे विच इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी, मास्टर कार्ड द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखना। इस तो इलावा अगर गल करते हैं रुपए की, रुपए कार्ड के बारे एक न्यूज़ है, डिस्कस करांगे। NPCI और NSDC की गल कर लेंगे। तो NPCI और NSDC दोनों 2008 दे विच बनाए गए सी। NPCI नैशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और NSDC की गल करते हैं तो नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, दोनों 2008 दे विच बनाए गए सी, याद रखने। नेक्स्ट है हू हैज़ वॉन मैन बुकर प्राइज 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैन बुकर प्राइज 2020। ਜਿਹੜੇ बुकर प्राइज ने दो तरीके ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दोनों आप इस साल ਦੇ अनाउंस कर ਦਿੱਤੇ गए ने। पहले आप डिस्कस किया होया और दूसरा यही है कि ਜਿਹੜਾ इंटरनेशनल बुकर प्राइज है और मैन बुकर प्राइज है, ये दो अलग अलग अवार्ड्स ने, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जितया गया सी मैरिएके लूकस रेजनेवल्ड और माइकल हटसन द्वारा। मैरिएके लूकस रेजनेवल्ड और मिशेल हटसन दोनों नूं इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया सी, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इन्हां दी बुक सी द डिसकंफर्ट ऑफ ईवनिंग। इन्हां दी बुक सी बेसिकली लिखी गई सी मैरिएके लूकस रेजनेवल्ड द्वारा और इसनूं ट्रांसलेट किया गया सी माइकल हटसन द्वारा। ठीक है, दोनों ने अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। इस तो इलावा जो मैन बुकर प्राइज है यह दिता गया डगलस स्टूअर्ट नूं। डगलस स्टूअर्ट ने मैन बुकर प्राइज 2020 जीते। इन्हां दी बुक शूगी बेन दे लई, शूगी बेन SHUGGAI शूगी बेन दे लई इन्हां द्वारा अवार्ड दिता गया। ठीक है जी,
इस तो इलावा अवनी दोषी का नाम काफ़ी इंपोर्टेंट बनेगा। मैन बुकर प्राइज़ दे विच हो सकता है अपने तो ये ना पूछा जाए कि हु हैज़ वॉन मैन बुकर प्राइज़ 2020। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इंडियन नॉवल या फिर विच इंडियन ऑथर वाज नॉमिनेटेड फॉर मैन बुकर प्राइज़ 2020 कि केड़ा इंडियन नॉवल या केड़ा इंडियन पर्सन ਨੂੰ नॉमिनेट किया गया सी मैन बुकर प्राइज़ 2020 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਅਵਨੀ ਦੋਸ਼ੀ। ਨਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬਰਨਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੋਵਲ ਦੇ ਲਈ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੋਵਲ ਹੈ ਅਵਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਰਨਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨ ਬੁਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 2020 ਦੇ ਲਈ। ਲੂਇਸ ਗਲਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਫॉर ਲਿਟਰੇਚਰ 2020। ਲੂਇਸ ਗਲਕ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ who will be conferred with Vatian Lifetime Achievement Award by Vatian UK organization in London। लंडन दी वैतियन UK ऑर्गेनाइजेशन, लंडन दी वैतियन UK ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हों द्वारा वैतियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वैतियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता जाता है। किन्हां नूं दिता जाएगा? ये इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, रमेश पोखरियाल निशांक जो कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इन्हां नूं इस अवार्ड दे नाल नामित किया जाएगा। ठीक है जी। हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने याद रखना है। होर भी काफ़ी अवार्ड इन्हों द्वारा जिते जा चुके हैं। बेसिकली अपने फील्ड के विच काफ़ी ज़्यादा माहिर ने, और जोड़ा ये अवार्ड है ये भी पोएट्स, ऑथर्स या फिर अपने फील्ड के विच अच्छे तरीके नाल काम करन दे पर्सन नूं दिता जाता है। इस तो इलावा ऑप्शनस काफ़ी इंटरस्टिंग ने, पहले अपने डिस्कस किए हुए हैं, और काफ़ी इंपोर्टेंट अवार्ड्स ने जोड़े इन्हों दिते गए थे। फॉर एग्जाम्पल नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने इन्हों की दिता गया सी, इन्हों अवार्ड दिता गया सी पैटा इंडिया द्वारा, पैटा इंडिया द्वारा अवार्ड दिता गया सी नवीन पटनायक नूं हीरो टू एनीमल अवार्ड, हीरो टू एनीमल अवार्ड नवीन पटनायक नूं। सरबानंद सैनोवाल असम के चीफ मिनिस्टर ने, असम के चीफ मिनिस्टर ने इन्हों रिसेंटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया सी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड सरबानंद सैनोवाल। हेमंत सोरेन झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने, झारखंड के चीफ मिनिस्टर इन्होंने चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दिता गया सी, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड हेमंत सोरेन। ठीक है जी। सुब्रमण्यम जयशंकर का नाम इस करके याद रखना है। वैसे तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, राज्यसभा MP ने गुजरात तो, इन्होंने बुक लिखी सी रिसेंटली द इंडियन वे, द इंडिया वे। ये याद रखना है किन्ना दी बुक है? सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा, S जयशंकर। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड GST भवन इन पंचकुला। पंचकुला दे विच, पंचकुला हरियाणा दे विच GST भवन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भवन है जिहड़ा, इसनूं इनॉग्रेट किया गया, इसनूं इनॉग्रेट किया गया। किन्ना द्वारा इसनूं इनॉग्रेट किया गया? इसनूं इनॉग्रेट किया गया अजीत कुमार द्वारा। अजीत कुमार जो कि GST की गल करते हैं तो CBIC के हैड ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। GST इनडायरैक्ट टैक्स की काफ़ी वड्डी एग्जाम्पल है। तो जिहड़ा इनडायरैक्ट टैक्स है तो इसके हैड ने CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। अजीत कुमार द्वारा इसनूं इनॉग्रेट किया गया। PC मोदी की गल करते हैं, CBDT के हैड ने, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स। PC मोदी हैड ने, इन्होंने रिसेंटली एक्सटेंशन दी गई सी, याद रखनी है। अजय भूषण पांडे रेवेन्यू सैकटरी ने प्लस फाइनेंस सैकटरी ने। TV सोमानाथन अपने एक्सपेंडिचर सैकटरी ने, इंडिया के एक्सपेंडिचर सैकटरी कौन ने? TV सोमानाथन। तरुण बजाज इकनॉमिक अफेयर सैकटरी ने। एक्सपेंडिचर TV सोमानाथन, तरुण बजाज इकनॉमिक अफेयर्स, अजय भूषण पांडे रेवेन्यू और फाइनेंस। सिमिलर तरीके नाल आपां डिस्कस किया सी अजय कुमार भल्ला। होर किहड़े डिस्कस कर सकते हैं? इस तो इलावा होर भी काफ़ी नाम ने, इंपोर्टेंट नाम ने। फॉर एग्जाम्पल अजय कुमार ने जिहड़े डिफेंस सैकटरी ने, अजय कुमार भल्ला। होम सैकटरी ने राजीव गौबा,
कैबिनेट सैकरेटरी ने, इन्हां दे नाम इंपोर्टेंट बनते हैं एग्जाम दे विच किते ना किते जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि न्यूज़ दे विच रहिंदे ने, किसी न किसी तरीके की इनॉग्रेशनस वगैरह इन्हां दी कीती हुंदी है, तो ये एग्जाम दे विच इंपोर्टेंट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजीव गौबा ने जिहड़े कैबिनेट सैकरेटरी ने, इन्होंने रिसेंटली कमेटी बनाई गई सी, उसदे हैड अपॉइंट किया गया सी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नैशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का, किस दे लई? दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि ये न्यूज़ आप पहले डिस्कस की हुई है, दोबारा न्यूज़ दे विच रही है, इस करके आप डिस्कस कर रहे हैं किहड़े बैंक द्वारा 500 मिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट साइन किया गया सी दिल्ली गाजियाबाद मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। एग्रीमेंट साइन किया गया सी एनडीबी दे नाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाल एग्रीमेंट साइन किया गया सी। ये बैंक है ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है, शंघाई चाइना दे विच हैडकुआटर है, और एनडीबी की ही गल करते हैं तो मार्कोस त्रियोजो रिसेंटली इसके हैड अपॉइंट किए गए सी, जो कि ब्राज़ील तो बिलोंग करते हैं। मार्कोस त्रियोजो, इन्हों तो पहले इंडियन परसन होंगे सी केवी कमात। इस तो इलावा वर्ल्ड बैंक रिलेटेड भी एक न्यूज़ है, डिस्कस करांगे अगे। इस तो इलावा जो पहले ऑप्शन डिस्कस कर लें, वर्ल्ड बैंक और IMF वाशिंगटन DC के विच हैडकुआटर है, दोनों के विच 190 कंट्रीज़ हो चुकी ने एज ए मैंबर, और 190 भी कंट्री रिसेंटली जोड़ी गई सी एंडोरा। इंपोर्टेंट रहेगा, एंडोरा कंट्री नूं रिसेंटली जोड़िया गया सी। वर्ल्ड बैंक के हैड डेविड मलपास ने, और IMF की हैड की गल करते हैं तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ADB 68 मैंबर कंट्रीज़ मेट्रो मनीला फिलीपींस के विच हैडकुआटर है, और मसत्सुगु आसाकावा ADB के हैड ने। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 103 मैंबर कंट्रीज़ ने AIIB दे विच। AIIB का हैडकुआटर बीजिंग के चाइना के बीजिंग दे विच है, और जिम लिक्विन इस दे हैड ने। नेक्स्ट है हू इज़ अपॉइंटेड एज होल टाइम मैंबर इन IRDAI। जी आप गल की थी IRDAI के रिलेटेड न्यूज़ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे विच होल टाइम मैंबर अपॉइंट किए गए हैं SN राजेश्वरी, जो कि चेयरमैन ते MD ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन और MD ने, इन्हों की अपॉइंट किया गया है, होल टाइम मैंबर अपॉइंट किया गया IRDAI दे विच। IRDAI के रिलेटेड एक चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं हर बार दसदा कि हैदराबाद दे विच इसका हैडकुआटर है, ये कदे नहीं भुलना, हैदराबाद दे विच इसका हैडकुआटर है। क्वेश्चन पक्का इत्थों पूछा जाता है। 1999 दे विच बनाया गया सी, हुणे डिस्कस करके हटे सी, और सुभाष चंद्र कुंतिया इसके चेयरमैन। इस तो इलावा सिमिलर तरीके नाल मधाबीपुरी बूच का नाम याद रखना है, इन्हों सेबी दे विच होल टाइम मैंबर अपॉइंट किया गया सी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भी गया, रिसेंटली CHSL का एग्जाम कंडक्ट किया गया सी, CHSL दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी, क्योंकि इन्हों अपॉइंट हुणे नहीं किया गया सी, अपॉइंट तो पहले किया गया सी, पर क्वेश्चन क्यों पूछा गया सी, रिसेंटली इन्हों का नाम न्यूज़ सी, इन्हों एक्सटेंशन दी गई सी, इस करके एग्जाम दे विच पूछा गया सी कि किन्हों सेबी दे विच होल टाइम मैंबर अपॉइंट किया गया सी, मधुबीपुरी बुच। ठीक है जी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, CHSL का एग्जाम की वैसे न्यूज़ आ चुकी है कि 2020 का जो एग्जाम है अप्रैल के कंडक्ट किया जाएगा। अगर किसी ने फिल किया तो जो अपने करंट अफेयर्स ने हर एक एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट ने, इस करके अपनी तैयारी करनी शुरू कर दो। अप्रैल के एग्जाम है तो इस टाइम के जोड़े करंट अफेयर्स ने तो जरूर आएंगे उसके। सिमिलरली रेणु देवी की गल करते हैं तो फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने ने बिहार के। इंपोर्टेंट रहेगा नाम, जहनाबी फूकान और संगीता रेड्डी, ये दो नाम फीकी के रिलेटेड ने। तो जोड़े फीकी है, फीकी के हैड कौन ने? संगीता रेड्डी फीकी के प्रेसिडेंट ने, और फीकी की एक ऑर्गेनाइजेशन है थले FLO, फीकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। इसके प्रेसिडेंट ने जहनाबी फूकान, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी, याद रखने। नेक्स्ट है हु विल पार्टिसिपेट इन द 15th G20 समिट।
15वें G20 ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 21 ਔਰ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰ ਕੱਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ G20 ਸਮਿਟ। 15ਵਾਂ G20 ਸਮਿਟ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੀਮ ਰਹੇਗੀ ਰਿयलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। कौन इसमें होस्ट इंडिया वालों कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। G20 के समिट के विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने। ठीक है जी। सिमिलरली याद रखना है 2021 का G20 समिट इटली होस्ट करेगा, 2022 का इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, जिस लिए इंडिया ने 100 करोड़ एलोकेट भी कर दिते ने। 100 करोड़ बजट एलोकेट किया गया 2022 के G20 समिट के लिए। 15वां समिट साउदी अरेबिया, 16वां समिट इटली और 17वां समिट इंडिया होस्ट करेगा। क्वेश्चन इस तरीके भी पूछा जा सकता है, किन्नवां एडिशन होस्ट करेगा इंडिया? तो 17वां। ठीक है जी। सिमिलर तरीके नाल रिसेंटली SCO की गल आई सी, SCO न्यूज़ के सीगा कि SCO जिहड़ा SCO का हैड ऑफ स्टेट समिट है रशिया होस्ट कर चुके हैं। हैड ऑफ गवर्नमेंट समिट इंडिया होस्ट करेगा, कुछ दिन बाद ही उसको होस्ट किया जाना है, वो भी याद रखना है 2020 का। एशियान समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, एशियान के बारे याद रखना है। एशियान का समिट प्लस ईस्ट एशिया समिट प्लस RCEP का समिट सेम कंट्री होस्ट करती होंगी है। इस साल का जोड़ा समिट है किन्ना ने ऑर्गेनाइज किया है? ये ऑर्गेनाइज किया गया है वियतनाम द्वारा। ठीक है जी। इस तो इलावा ब्रिक्स के बारे याद रखना है, क्योंकि ब्रिक्स की प्रेजेंसी इंडिया में दी जा रही है। तो 12वां समिट ब्रिक्स का ऑर्गेनाइज किया है किसने? रशिया ने। और 13वां समिट है जोड़ा ये इंडिया होस्ट करेगा 2021 के विच। सारे फैक्ट्स याद रखने। इस तो इलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे याद रखना है, वाराणसी यूपी तो लोक सभा MP ने। बाकी ऑप्शन के विच नरेंद्र सिंह तोमर का नाम काफ़ी दिनों तो आप डिस्कस नहीं किया सी, रिवाइज कर रहे हैं इतने कि जोड़ा नरेंद्र सिंह तोमर ने पंचायती राज मिनिस्ट्री इन्हों लवे। इस तो इलावा इन्हों लवे किहड़ी होर मिनिस्ट्री है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। रीसेंटली इन्हों फूड मिनिस्ट्री दी गई सी, फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री। दो मिनिस्ट्रियां ने फूड के रिलेटेड। फूड प्रोसैसिंग मिनिस्ट्री दी गई सी नरेंद्र सिंह तोमर नूं हरसिमरत कौर बादल के रेजिग्नेशन तो बाद मोरियाना MP तो लोक सभा MP ने। और दूसरी मिनिस्ट्री फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है जी, यह दी गई सी किन्हां नूं? दी गई सी दी गई सी पीयूष गोयल नूं, पीयूष गोयल नूं, जो कि राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। ठीक है जी। राम विलास पासवान लवे हुंदी सी और उन्हों की डैथ तो बाद किन्हां दे दी गई? पीयूष गोयल नूं दे दी गई। बाकी दो न्यूज़ ने राजनाथ सिंह रिलेटेड और रविशंकर प्रसाद रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही G20 समिट तो इलावा 3rd ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो लॉन्च किया जाएगा। 3rd ग्लोबल रीन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वर्चुअल फॉर्म के विच। ठीक है जी। वर्चुअल फॉर्म के विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस तो इलावा राजनाथ सिंह की गल करते हैं तो राजनाथ सिंह 2 बुक्स इनोग्रेट कर जा रहे हैं। किहड़ी 2 बुक्स इनोग्रेट की गई ने? इनोग्रेट की गई ने द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3। और दूसरी बुक है लोकतंत्र के स्वर, लोकतंत्र के स्वर, जो कि स्पीचीज़ का कलैक्शन है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद का। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीचीज़ का कलैक्शन है। 2 बुक्स इनोग्रेट की गई ने, लॉन्च की गई ने राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है जी। और इन्होंने बुक्स का ही वर्जन इलैक्ट्रॉनिक वर्जन लॉन्च किया गया है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा, प्रकाश जावेदकर द्वारा। ठीक है जी। इस तो इलावा सिमिलर तरीके जिस तरीके वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू की बुक लिखी गई थी 3 साल पूरे होने पर CCC, जिसमें आप डिस्कस किया कंपीटीशन कमीशन एंड चेंजिंग समथिंग, इस तरीके की बुक सी CCC। ठीक है जी, याद रखनी है। रविशंकर प्रसाद कम्युनिकेशन IT और लॉ मिनिस्टर ने। इन्हों द्वारा एक स्टैंप रिलीज़ की गई है माई स्टैंप ऑन छठ पूजा।
छठ पूजा ऑर्गेनाइज की जा रही है। हालांकि पंजाब दे विच इस फैसटीवल नूं घੱਟ मनाया जाता है, पर छठ पूजा के लिए रवि शंकर प्रसाद जो कि इलैक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और IT मिनिस्टर, इस तो इलावा लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री इन्हां लवे माई स्टैंप ऑन छठ पूजा लॉन्च की है, रिलीज़ की है, प्लस एक स्पैशल कवर लॉन्च किया है, छठ अ सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी एंड क्लीननेस, जिसकी थीम रही है छठ अ सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी एंड क्लीननेस। ठीक है जी, दोनों याद रखने ने इंपॉर्टेंट रहेंगे। रवि शंकर प्रसाद के बारे भी याद रखना है, पटना बिहार तो लोक सभा MP ने। कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, मेरे माइंड चो स्किप कर रही थी, CCC कनैक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। नेक्स्ट है USA अपॉइंटेड जेम्स स्टोरी एज इट्स फर्स्ट एंबेसडर इन 10 ईयर्स टू विच कंट्री। USA द्वारा किहड़ी कंट्री दे विच 10 साल बाद पहली बार एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं। कौन अपॉइंट किए गए हैं? वेनेजुएला दे विच। किहड़ी कंट्री दे विच? वेनेजुएला दे विच जेम्स स्टोरी नूं एंबेसडर अपॉइंट किया गया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, बस वेनेजुएला बारे याद रखना है। वेनेजुएला कैपिटल और करेंसी, वेनेजुएला कैपिटल कैरेस्कस है, करेंसी बोलीवर चलती है। सिमिलरली भूटान कैपिटल थिम्पू, करेंसी नागुलतरम। UAE कैपिटल आबू धाबी, करेंसी दिरहम चलती है। केनिया कैपिटल नायरोबी, करेंसी शिलिंग चलती है। और पेरू कैपिटल लीमा, करेंसी सॉल चलती। पेरू बारे पिछले 2 दिनों तो अपन लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि पेरू दे विच प्रेजिडेंट ने रेजिग्नेशन दिता, तीसरे ऐसे प्रेजिडेंट ने जिहड़े एक हफ्ते दे विच अपॉइंट किए गए। केनिया के बारे भी आप डिस्कस किया कि केनिया दे विच वाइट जिराफ पाया गया। ठीक है, वाइट जिराफ, ओनली नॉन वाइट जिराफ कित्थे है? केनिया दे विच है। इस तो इलावा भूटान और UAE रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आप डिस्कस कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों के विच। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए, UAE ने लॉज चेंज किए सी अपने। ठीक है, वूमेंस नूं रिलैक्सेशन दी गई है, एल्कोहल दे विच रिलैक्सेशन दी गई है। ठीक है, रिलेशनशिप लिविंग रिलेशनशिप दे विच रिलैक्सेशन दी गई है UAE द्वारा। इस तो इलावा गोल्डन वीज़ा डिस्कस किया सी अपने कुछ दिन पहले। ठीक है जी, कि गोल्डन वीज़ा इशू किया गया है UAE द्वारा, 10 साल के लिए वीज़ा प्रोवाइड किया जाएगा। हुण सिमिलर तरीके नाल UAE ने UAE बारे 2-3 न्यूज़ होर डिस्कस कर लेने पुरानी। फॉर एग्जाम्पल UAE ने मार्स मिशन लॉन्च किया सी, होप मिशन UAE द्वारा मार्स मिशन। UAE दे विच इकलौता जिहड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है दोबारा शुरू किया गया, बराका। ये भी आप रिसेंटली UAE बारे डिस्कस किया सी। IPL याद रखना है UAE दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, इस तो इलावा वूमेन T20 चैलेंज UAE दुबई दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली इन्होंने अनाउंस किया सी कि राशिद नाम का एक रोबोट मून के उत्ते भेजणगे ये। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप डिस्कस किए हुए हैं। हुण UAE दोबारा न्यूज़ दे विच डिस्कस करते हैं। इस तो इलावा भूटान के रिलेटेड जी आप डिस्कस की सी कि रुपए के रिलेटेड न्यूज़ है कि जो रुपए कार्ड है, जिस तरीके नाल मास्टर कार्ड और वीज़ा आप डिस्कस किए हैं, तो यह अमेरिकन कंपनीज़ ने जिन्हां दे नाल आपां ट्रांजैक्शनस करते हैं। ठीक है, अपने जो डेबिट कार्ड्स होंगे ने या क्रेडिट कार्ड्स होंगे ने, उन्होंने तुसीं देखा होगा लिखा होंगे मास्टर कार्ड या वीज़ा। ठीक है, तो सिमिलर तरीके नाल इंडिया ने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सी, रुपए प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। उस तो बाद इस प्लेटफॉर्म के राही डिफरेंट कंट्रीज़ नूं भी सर्विसिज प्रोवाइड की गई। ठीक है, जिस तरीके नाल आप वीज़ा की सर्विसिज अमेरिका की सर्विसिज इत्थे यूज़ कर रहे हैं, तो सिमिलर तरीके नाल इंडिया रुपए प्लेटफॉर्म नूं डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच लेके गया। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया हो गया, UAE हो गया, भूटान हो गया। तो हुण भूटान दे विच उसका फेज़ 2 कंडक्ट किया जा रहा है, फेज़ 2 लॉन्च किया जा रहा है भूटान दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान डॉक्टर लोटे शेरिंग द्वारा। डॉक्टर लोटे शेरिंग प्राइम मिनिस्टर ने भूटान दे कल इसनूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी, नैक्सट है UAE ने सस्पेंड किए ने वीज़ा। 2 दिन पहले आप डिस्कस किया गोल्डन वीज़ा लॉन्च किया 10 सालों के लिए। ठीक है, हुण इन्होंने 12 कंट्रीज़ के विजिटर वीज़ा सस्पेंड कर दिते हैं कि नवे वीज़ा नहीं ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इन्होंने 12 कंट्रीज़ के लिस्ट जारी की है 12 कंट्रीज़ की। अपने लिए एक ही नाम इंपोर्टेंट बनेगा, पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ ने, इस टर्की है, होर भी काफ़ी कंट्रीज़ ने,
पर पाकिस्तान ज़्यादा इंपोर्टेंट बनेगा क्योंकि अपनी नेबरिंग कंट्री है कि पाकिस्तान के नवे वीज़ा नहीं दिते जाएंगे, पुरानिया दे विच कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ नवे वीज़िया के उत्ते चेंज किया गया। नैक्सट है विच स्टेट गौरमेंट हैज़ लॉन्च दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना टू एम्पावर परसन विद डिसेबिलिटीज़। परसन विद डिसेबिलिटीज़ ने जिहड़े उन्हां दे लई स्कीम लॉन्च की गई है दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, किन्ना द्वारा? पंजाब द्वारा इस स्कीम नूं लॉन्च किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन की अगर आप गल करिए तो बाकी ऑप्शन के विच डिस्कस करते हैं। सब तो पहले न्यूज़ ने रिलेटेड हर एक रिलेटेड महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र पहली ऐसी सिटी बनी है इंडिया की जिसने एक प्लान डेवलप किया डेजिग्नेटेड स्पेसिस के लिए वूमेंस की नीड्स के लिए डेजिग्नेटेड स्पेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके नाल डेवलप किया जाएगा वूमेंस की नीड्स के लिए। सिमिलर तरीके नाल मुंबई ही ऐसी पहली सिटी बनी सी इंडिया की जिसने वूमेन के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स लॉन्च किए थे। वूमेन ट्रैफिक सिग्नल्स मुंबई के शुरू किए गए थे। ठीक है जी, याद रखना। करनाटका अपना 31वां डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहा है विजयनगर बलारी डिस्ट्रिक्ट तो सैपरेट करके करनाटका दे विच विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। 31वां डिस्ट्रिक्ट होएगा करनाटका का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरीके नाल सिमिलर तरीके नाल अगर तमिलनाडु की गल करते हैं तो रिसेंटली तमिलनाडु दे विच भी डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। 38वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया सी तमिलनाडु का। सिमिलर तरीके नाल आंध्र प्रदेश के विच अनाउंस किया गया। आंध्र प्रदेश के विच ही 3 कैपिटल्स के बारे भी अनाउंस किया गया सी। ठीक है, इफैक्ट्स याद रखने। छत्तीसगढ़ की गल करते हैं तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल द्वारा दाई दीदी मोबाइल क्लीनिक वैनस लॉन्च की गई। दाई दीदी मोबाइल क्लीनिक वैनस लॉन्च की गई ने टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ऑन 19 नवंबर। प्राइम मिनिस्टर जेडे इंडिया की ओनली वूमेन प्राइम मिनिस्टर ने इंदिरा गांधी, इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी गई है 19 नवंबर को। ठीक है, 31 अक्तूबर बारे आप डिस्कस किया सी। 31 अक्तूबर से या शायद 30 अक्तूबर सीगा जिस दिन इन्हों की डैथ एनिवर्सरी सी। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 19 नवंबर को इन्हों की बर्थ एनिवर्सरी सी, इस करके दाई दीदी मोबाइल क्लीनिक वैनस छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च की गई। मेघालय की गल करते हैं तो मेघालय के विच एग्रीमेंट साइन किया गया वर्ल्ड बैंक के नाल। मेघालय के विच ट्रांसपोर्ट सैक्टर नूं मॉडरनाइज करने के लिए $120 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया गया वर्ल्ड बैंक के नाल। ठीक है जी, याद रखना। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो काइंडली अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।